کیا آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے اور واقعی ایک کامیاب شخص بننے کے خواہاں ہیں؟ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کامیاب انسان کیسے بنے۔ کامیابی کیا چیز ہے؟ اپنے مقاصد کا حصول کامیابی کہلاتا ہے۔ کوئی کام پیش نظر ہے، اسے حاصل کر لیا یا مکمل کر لیا، وہ کامیابی ہے۔ یہ ویڈیو کامیاب زندگی کی مہارت کے لیے ایک مکمل اور عملی فریم ورک پیش کرتی ہے، جس میں طویل مدتی کامیابی کی وضاحت کرنے والے انتہائی اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کامیابی صرف پیسے یا عہدے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ذہنیت، عادات، نظم و ضبط، تعلقات اور مقاصد کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کیا سیکھیں گے؟ ترقی کی ذہنیت کیسے پیدا کی جائے؟ کامیاب لوگوں کی روزمرہ کی عادات کیا ہوتی ہیں؟ مالی نظم و ضبط اور دولت کی تعمیر کیسے کی جائے؟ جذباتی ذہانت اور رشتوں کی اہمیت کیا ہے؟ بہتر کارکردگی کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اپنی زندگی کو مقصد اور معنی کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کریں؟ کامیابی کے لیے ٹیکنالوجی کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے؟ یہ ویڈیو کن افراد کے لیے ہے؟ طلباء و طالبات اور نوجوان پیشہ ور افراد، جس میں ملازمین بھی شامل ہیں اور فری لانسر بھی شامل ہیں، کاروباری افراد اور انٹرپرینیورز اور کاروباری رہنما، خاندانی کاروباری اسٹیک ہولڈرز، اور کوئی بھی جو ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی چاہتا ہو۔ اگر آپ الجھن سے وضاحت کی طرف، جدوجہد سے ترقی کی طرف اور کوشش سے کامیابی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ زندگی بدلنے والے مزید مواد کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ایک کامیاب شخص بننا زندگی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک عملی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ کامیابی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتفاق سے ہوتی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو قدم بقدم ارادے، نظم و ضبط اور وضاحت کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ اس پریزنٹیشن یا ویڈیو میں ہم ایک جامع فریم ورک سے گزریں گے، جس میں ذاتی ترقی، پیشہ ورانہ مہارت اور مالی حکمت عملی اور مقاصد پر مبنی زندگی کا احاطہ کیا جائے گا۔ اگر آپ واقعی ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ نہ صرف کامیابی حاصل کریں گے بلکہ آپ اسے برقرار بھی رکھ سکیں گے۔ آپ سے ایک سوال، کیا آپ واقعی ترقی کر رہے ہیں یا صرف مصروف رہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہر روز سخت محنت کرتے ہیں، لیکن ان میں سمت کا فقدان ہوتا ہے۔ وہ فعال ہیں لیکن مؤثر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محنت ہماری جاگیر ہے، لیکن جاگیر بھی زرخیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقی کامیابی تب ملتی ہے جب آپ کی کوشش مقصد اور سمت کے مطابق ہو۔ آج کی ویڈیو صرف محرک مواد نہیں ہے، یہ ایک منظم نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس میں 21 اشارات ہیں۔ ہر سیکشن پچھلے سیکشن پر تعمیر ہوگا، جس سے آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک مکمل روڈ میپ ملے گا۔ آخر تک آپ کے پاس وضاحت، سمت اور قابل عمل بصیرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم سیکشن اے شروع کرتے ہیں۔ کل 7 سیکشن ہیں اور پہلے سیکشن کا نام ہے ذاتی ترقی۔ ذہنی بنیادیں۔ کامیابی ہمیشہ ذہن سے شروع ہوتی ہے، سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ ترقی کی ذہنیت آپ کو چیلنجوں کو رکاوٹ کے بجائے مواقع کے طور پر دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثبت نقطہ نظر آپ کو مسائل کے بجائے حل پر توجہ مبذول کرنے میں مدد کرتا ہے، اور خود آگہی آپ کو اس بارے میں وضاحت دیتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کہاں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، روزمرہ کی عادات۔ آپ کی روزمرہ کی عادات آپ کے مستقبل کی تشکیل کرتی ہیں۔ اپنے دن کا آغاز ارادے سے کریں۔ صبح کا ایک مضبوط معمول رفتار بڑھاتا ہے۔ اپنے آپ کو مسلسل سیکھنے کے لیے وقف کریں، کیونکہ ترقی کبھی نہیں رکتی۔ اور ہمیشہ اپنی صحت کو ترجیح دیں، کیونکہ توانائی کے بغیر کامیابی پائیدار نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جذباتی ذہانت۔ جذباتی ذہانت کامیابی کا ایک اہم عنصر ہے۔ آپ کو اپنے رد عمل پر قابو رکھنا سیکھنا چاہیے، خاص طور پر مشکل حالات میں۔ ہمدردی آپ کو دوسروں کو سمجھنے اور گہرے روابط قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔
और मजबूत समाजी महारतें आपको हर माहौल में असर अंदाज होने, ताउन करने और कामयाब होने में मददगार साबित होती है। अब आइए दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसका उन्वान है पेशावराना महारत। काम की अखलाकियात। कामयाबी के लिए मजबूत काम की अखलाकियात की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज रखें जो वाकई अहम हैं और परेशानियों से बचने की कोशिश करें। साबित कदम रहें यहाँ तक कि जब चीज़ें मुश्किल हो जाएं और आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो तब भी इस्तकामत दिखाएं। ईमानदार रहें चाहे आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। और सबसे अहम बात यह है कि पहल करें, मौके का इंतज़ार न करें, इन्हें बनाने की कोशिश करें। नंबर 5, स्ट्रेटेजिक सोच यानी हिकमत अमली। आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसका वाज़ेह नज़रिया रखें। ऐसे निज़ाम बनाएं जो आपको मुस्तकिल नताइज हासिल करने में मदद करें और मुवाफ़क़त पज़ीर रहें, क्योंकि दुनिया मुसलसल तब्दील हो रही है। वैसे तो दुनिया हर लम्हे तब्दील हो रही है, मगर हम महसूस नहीं करते। मगर आज का दौर हमें यह महसूस कराता है कि दुनिया बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रही है। नंबर 6, मवासलात और राब्ता। मवासलात सबसे ताकतवर महारतों में से एक महारत है। समझने के लिए गौर से सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुने। अपने ख्यालात का वाज़ेह और एतमाद के साथ इजहार करें और इस तरह बातचीत करना सीखें जो दूसरों को मुतासिर करे और मौसर हो। अब आइए तीसरे सेक्शन की तरफ, मालियाती हिकमत अमली। मनी माइंडसेट। पैसे के बारे में आपकी ज़हनियत आपकी माली कामयाबी का तयन करती है। कसरत के लिहाज से सोचें, कमी के लिहाज से नहीं। इज़्ज़त नफ्स के लिए भी अहम है, मगर हक के साथ। तवील मुद्दती फ़वाइद के लिए कलील मुद्दती खुशियों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहें और हमेशा कीमत पर तवज्जो दें, लेकिन अफादियत का भी ख्याल रखें। माली आदात। माली कामयाबी नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए पैदा होती है। अपनी आमदनी और अखराजात को एहतियात से ट्रैक करें, बाकायदगी से हिसाब रखें। इस्तेहकाम पैदा करने के लिए आमदनी के मुतादिद ज़राए तैयार करें और तवील मुद्दती दौलत की तामीर के लिए मुसलसल सरमायाकारी करें। नंबर 9, दौलत की नफ्सियात। दौलत सिर्फ माली नहीं, ये नफ्सियाती है। इल्म और मनसूबाबंदी की बुनियाद पर हम हिसाब शुदा खतरात लें, यानी कैलकुलेटेड रिस्क लें। पैसे के इंतज़ाम में एतमाद पैदा करें और फराखदिली पर अमल करें, क्योंकि हकीकी दौलत में देना भी शामिल है। अब आइए चौथे सेक्शन की तरफ, रिलेशनशिप के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से। नंबर 10, ज़ाती राब्ते। आपके रिश्ते आपके माहौल की वजाहत करते हैं। अपने आप को मस्बत और तरक्की पर मबनी लोगों से घेर रखें, यानी अपना नेटवर्क जो है ऐसे लोगों से बनाएं। एतमाद पैदा करने के लिए गहराई से सुने, तवज्जो से सुने और हमेशा तारीफ का इजहार करें। यह बंधनों को मजबूत करता है। इंसानों का एहतराम, लहजे में मिठास और इज्जत नफ्स का ख्याल आपको मारूफ और मकबूल बनाता है। 11, तनाज़ात के मामलात। तनाज़ात, इख्तलाफात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अपने जज्बात पर काबू रखें और पुख्तगी के साथ जवाब दें। रद्द अमल जाहिर करने से पहले दूसरों के नुक्ता नज़र को सुनें और समझने की कोशिश करें और हमेशा हल पर तवज्जो दें, इल्ज़ाम तराशी पर नहीं। 12, क़यादत का ताल्लुक़। क़यादत असर व रसूख है। अपने आमाल में मुस्तनद और मुस्तकिल रहें। दूसरों को तरक्की और कामयाबी के लिए बाख्तियार बनाएं। लोगों को बेहतर बनाने में मदद के लिए तामीरी राय फराहम करें। सेक्शन ई, टाइम मास्टरी। तरजीही इंतज़ाम। वक्त आपका सबसे कीमती वसीला, ज़रिया और रिसोर्स है। अपनी तरजीहात को जानें और इसी के मुताबिक अपने अहदाफ तय करें। तरजीहात ज़िंदगी में मामलात के इंतखाब का नाम है और वाज़ेह हुदूद तय करके अपने वक्त की हिफाजत करें। कारकर्दगी का निज़ाम। कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए निज़ाम का इस्तेमाल करें, सिस्टम का इस्तेमाल करें। इसी तरह कामों को एक साथ ग्रुप करें
और एक वक्त में निमटने की कोशिश करें। बैचिंग, अपने काम को फोकस टाइम ब्लॉक्स में शेड्यूल बना लें। 2-2 घंटे के ब्लॉक्स बनाएं, दिन में 4 ब्लॉक्स बनाएं और हफ्ते के अंदर जो है वो 20 या 24 ब्लॉक्स बनाएं और उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें। और कामों को अपनी तवानाई की सतह के मुताबिक रखें, यानी सुबह से शाम तक जो है मुख्तलिफ तवानाई के मराहिल होते हैं, तो कामों की अहमियत के पेश नज़र उस तवानाई से लिंक करने की कोशिश करें। 15. तवाज़ुन के अमल। तवील मुद्दती कामयाबी के लिए तवाज़ुन ज़रूरी है और मुतवाज़िन रहना ज़रूरी है। आराम करने और रिचार्ज करने के लिए वक्त निकालें। आप जो कुछ करते हैं इसमें मौजूद रहें, तवज्जो दें, दिलचस्पी लें और अपनी ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी को मजबूत करने की कोशिश करें, उसमें तवाज़ुन बरकरार रखें। आइए अब छठे सेक्शन की तरफ, मकसद की हम आहंगी या सफबंदी की तरफ। अपने विजन और जागते ख्वाबों की वजाहत करें। मकसद के बगैर कामयाबी खाली महसूस होती है। ज़िंदगी में अपनी सिमत की वजाहत करें। अपने मकसद को समझने की कोशिश करें और समझें भी, और इस मीरास के बारे में सोचें जिसे आप छोड़ना चाहते हैं कि आप अपने बाद किस अंदाज से अपने आप को याद करवाना चाहते हैं। 17. मानी की तख्लीक। अपने काम को अपनी ताकतों और अक़दार के साथ हम आहंग करें, इससे मानी और तकमील पैदा होती है। और दूसरों के लिए ताउन करने पर तवज्जो मरकूज़ करें, इससे हकीकी इत्मीनान मिलता है। 18. तरक्की का अज़म। तरक्की के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। अपने कंफर्ट जोन से बाकायदगी से बाहर निकलें। नाकामियों से खौफजदा होने की बजाय इनसे सीखें और अपनी तरक्की मनाएं। अपने आप को मुतहर्रिक रखें, शुक्रगुजारी से फरावानी आती है। अब आइए आखिरी सेक्शन जी, टेक्नोलॉजी और इससे मुताल्लिक़ मामलात। डिजिटल नज़्म ज़ब्त। टेक्नोलॉजी को आपकी खिदमत करनी चाहिए, आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। 40 साल पहले कहते थे कि घोड़े पर सवार हों मगर इसे अपने ऊपर सवार न करें। अब टेक्नोलॉजी का भी यही मामला है। इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करें, हुदूद तय करें और ज़हनी तौर पर ताज़ा रहने के लिए बाकायदगी से वक्फे लें। 20. कारकर्दगी का फ़ायदा उठाना। अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तकरार वाले कामों को खुदकार बनाएं और तेज़ तर तरक्की के लिए डिजिटल लर्निंग का फ़ायदा उठाएं और टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से सीखें और अपने वक्त को मज़ीद कारकर्दगी करने वाले कामों में लगाने की कोशिश करें। 21. ऑनलाइन मौजूदगी। आपकी ऑनलाइन मौजूदगी आपकी डिजिटल शनाख्त है। यह दौरे हाजिर की ज़रूरत है। कल तक जो चेहरे टीवी पर नहीं आते थे, अब सोशल मीडिया इनकी शनाख्त बन गया है। मजबूत साख बनाएं, सही लोगों से जोड़ें और अपने मवाद के ज़रिए अपनी कदर पैदा करने की कोशिश करें और अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करें। अब हम आ रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के इख्तिताम की तरफ। कामयाबी रोज़ाना बनती है, यानी रोज़ाना कोशिश करना ज़रूरी है। तसलसल की ज़रूरत है। कामयाबी एक बड़ा वाक़या नहीं है, ये रोज़ाना की मशक है। अपनी आदत में मुस्तकिल रहें, हर रोज़ तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करें और याद रखें कि आपका मुस्तकबिल इससे बनता है जो आप आज करते हैं। आज बीज डालें, आज तरक्की के लिए एक कदम बढ़ाएं। 1000 में 4 अदद होते हैं, मगर एक कदम बढ़ाने से ये 3 अदद रह जाते हैं। इब्तिदा करने से मनाजिल आसान हो जाती हैं, सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। आगे बढ़िए, कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। आज ही अमल करें, अब आपकी बारी है। आज इस वीडियो से कम एक उसूल अपने ऊपर नाफिज कर दें। इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसकी इसकी ज़रूरत हो। यह माशरे में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और मज़ीद ताकतवर बसीरत के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस मौजू पर ग्रुप डिस्कशन करें, स्टडी सर्कल्स का इनेकाद करें, इस किस्म की प्रेजेंटेशन दें और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करें। बराए करम वीडियो के लिए चैनल पर बशीर जुम्मा और किताबों के लिए timemanagementkalam.com को तलाश करने की कोशिश करें।